Student, now today we come to the same topic of linear equation in one variable, and our today's topic is exercise 2.4. In last video we have studied how to solve the linear equation having variables on both the sides, and depending on the same topic we have the next exercise 2.4, which consists of the word examples which are based on how to solve the linear equation having the variables on both the sides. So let us start with the exercise 2.4. Now let us take the first example of exercise 2.4. The first example: Amina thinks a number and subtract 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times of the number she thought of. What is the number? तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें क्या हुआ है कि जो अमीना है, अमीना एक कोई तो भी नंबर को अज्यूम करती है, थिंक करती है. सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन: कंसीडर द नंबर, कंसीडर अमीना थिंक्स अ नंबर x. Therefore by condition subtract 5 by 2 from it and she multiplies the result by 8. तो हमें क्या करना है? 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो therefore subtract 5 by 2 and 8 into x minus 5 by 2. हमने x में से 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट किया और जो भी रिजल्ट है उसको 8 से क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय द 8. हमने इसको मल्टीप्लाई किया. ओके. शी द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट्स. 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट. तो 3 टाइम्स उसने क्या कंसीडर किया था? x. सो 3 टाइम्स द x. दिस इज अवर मैथमेटिकल फॉर्म. नाउ वी सॉल्व इट. सो 8 into x, 8x minus 8 into 5 by 2 is equal to 3x. So 2 4s are 8, and therefore we have here 8x minus 4 into 5, 20 is equal to 3x. Shift this, so that's why we get here 8x. When 3 is shifted, minus 3x. When 20 is shifted, it becomes plus 20. So now 8x minus 3x, therefore we have here 5x is equals to 20. So x is equals to 20 upon 5. This means that x is equals to 4. So this is the number, and therefore Amina thinks, Amina consider number, the number. So this is our. Here we start with the second, that is the fourth example of exercise, and the example is one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. We have a 2 digit number, उसमें से कोई भी एक डिजिट अनदर डिजिट का 3 टाइम्स रहता है. जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 2 6, तो अगर हम ये 2 10th प्लेस है और 6 यूनिट प्लेस है, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये हो गया. तो ऐसे एग्जांपल है. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं, अगर हमने उसको इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल 19 है, तो 19 का इंटरचेंज क्या हो जाता है? 91 हो जाता है, यानी डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद में. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं and add it to the resulting number, the original number you get is 88. What is the original number? So here is a solution. यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 10th प्लेस, और यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर. दिस इज ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर. और यहाँ पे इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज. तो अगर हम यूनिट प्लेस को अगर x कंसीडर करते हैं, तो 10th प्लेस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x.
अभी हमारा ओरिजिनल नंबर टू डिजिट नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 3x, तो ये होगा 10 इंटू 3x एंड यूनिट प्लेस हो जाएगा प्लस x। दिस इज द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। अभी हमें उसको इंटरचेंज करना है, तो ये जो 10 प्लेस है वो जाएगा इंटरचेंज में, यूनिट प्लेस हो जाएगा 3x, और जो यूनिट प्लेस है वो कहा जाएगा 10 प्लेस में चला जाएगा x। अभी x इंटू 10, 10x प्लस 3x. So these are the original number. Now we add original number plus interchange number. देखो resulting number is 88. So now original number plus interchanged number is equals to 88. So original number is 10 into 3x plus x and then plus 10x plus 3x is equals to how much 88. सॉल्व करते हैं तो 10 into 3 कितना हो जाएगा 30x plus x plus 10x plus 3x कितना होता है 88। काउंट करेंगे 30 plus 10 40, 40 plus 3 and then 1 44. So therefore we have here 44x is equals to how much 88 and therefore x is equals to 88 upon 44, तो ये हो जाएगा कितना 2, 88 upon 44 2। तो ये बन गया हमारा यूनिट प्लेस। therefore यूनिट प्लेस कितना हुआ, यूनिट प्लेस इज 2। 10th प्लेस कितना हो जाएगा, 10th प्लेस is 2 into 3, 2 into 3, 3 into 2, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 and therefore original two digit number, original two digit number is 2 6 यानी सॉरी 10th place is 6, तो ये हो जाएगा 6 और यूनिट प्लेस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 62। So this is our answer. Here the next example, 8th example, and that is half of the herd of the deer are grazing in the field. So and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हमें इस एग्जाम्पल में क्या कंसिडर करना है, ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है। हमारे पास में एक द हर्ड ऑफ द डियर कंसिडर करेंगे कि उस हर्ड में एक्स डियर्स है, उसमें से हाफ डियर्स क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो 3/4 थे उसमें से रिमेनिंग में से 3/4 थे वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। जो बचे हुए 9 है वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी एग्जांपल है। इसको सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्यूशन, कंसीडर देयर आर x deers in herd, half of the deer are grazing, half are grazing, that is x by 2. 3/4 of remaining, अभी हाफ अगर ग्रेजिंग कर रहे तो कितने बचेंगे, हाफ बचेंगे, उसमें से 3/4 उनके 3/4, सो 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग, दैट इज 3/4 इंटू x by 2 कितना हो जाएगा, 3x by 8। देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, कंसिडर टोटल है x, उनमें से x by 2 और 3x by 8 इतने ग्रेजिंग कर रहे और इतने प्लेइंग कर रहे, तो टोटल कितने हो गए, x by 2 और 3x by 8। अभी जो बचे हुए 9 है टोटल, जो ये 9 है, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बचे हुए 9,
remaining 9 are drinking water. यानी grazing x/2, playing 3x/8 एंड रिमेनिंग 9, तो ये तीनों का जो एडिशन रहेगा वो टोटल रहेगा हमारा। देयरफॉर अभी देखिए ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं x/2, सो वी हैव x/2 प्लस प्लेइंग कितने हैं 3x/8, ड्रिंकिंग कितने हैं 9, सो प्लस 9, टोटल कितने हो जाते हैं जो प्लेइंग कर रहे हैं ग्रेजिंग प्लस प्लेइंग प्लस ड्रिंकिंग वाटर, तो टोटल डियर हो जाते हैं x। नाउ 8 and 2, व्हाट इज द sum of 8 and what is the LCM of 8 and 2? It is 8. So therefore we consider here 8 अगर हम इसमें कंसिडर करते हैं तो इनका हमें सॉल्यूशन करना है 8। So now 8 अगर मुझे इस 2 को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, so I multiplied by 4, so it becomes 4x, already there is 8, so plus here 3x and here is 9, अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें प्लस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 multiplied by 8, so 9 8s are 70 is equals to here is x. So now 8 should be transferred, therefore 4x plus 3x 7x plus 72 is equals to 8 into x 8x, ये हो जाएगा। Now shift the 7x to the right hand side, therefore we have here 72 is equals to 8x, 7x is shifted minus 7x, and therefore 72 is equals to 8x minus 7x x. This implies that x is equals to how much 72. So this is our answer. Now consider there are x deers in a herd and therefore total deers in herd are how much 72. So there are 72 deers in a herd.